Hello my dear students, now I am proceeding my lecture. In the first class I told you about reading comprehension and direct questions. In direct questions we will get n number of questions. I told you the categories. Now today I am going to cover one category which is called identification of literary device, right? How to find out literary devices in the given sentence, in the given poetry, in the given stanza of the paragraph. Let's study, right? I will tell you the literary devices in terms of some basis, right? Suppose if I talk about English, there are two parts in English. One is known as the parts of speech, right? Parts of speech. And the other part is known as figure of speech, right? Parts of speech and figure of speech. Parts of speech covers grammar portion, means it tells you how to write the sentence in a correct format, means it takes care of subject, verb and object kind of thing. Subject should be at the right place, verb should be according to the subject, like this. But if I talk about figure of speech, means literary devices, it takes care of the emotions of author. It expresses the emotions of author. इससे author के expressions या emotions express होते हैं कि how he feels. तो literary device does not, or you can say do not bother about any grammar rules. Author खुद कहते हैं कि we use figure of speech to express our feelings. अब उसमें grammar foundation न दे, right? So they ignore the grammar rules, right? Shakespeare also ignores n number of times the grammar portion in his writings, and he said that if I want to express my feelings through my writings, तो I don't want any kind of foundations, right? So कई बार वो plural forms को एक साथ लिख देते थे in his writings, right? So figure of speech expresses the feelings of the author. So let's take care of those words which are coming in terms of literary devices in your questions. ठीक है? तो let's begin. This is part 1 of literary terms, right? Now let's see. The first base of your literary terms is the figure of speech based on comparison. Based on comparison. Comparison means what? If I talk about comparison, comparison is of two kinds. Comparison. First comparison is, if I talk about comparison, see, comparison is of two kinds. One comparison is known as what? Comparison between similar things. And the second point, if I talk about comparison between dissimilar things. Similar things and dissimilar things. Try to understand. Similar comparison वो होता है जो एक जैसी चीज़ों में होता है. Suppose if I compare one human being with another human being, then that is called similar comparison. Suppose if I talk about the sentence that compare the characteristics of Akbar with that of Aurangzeb, right? Now Akbar and Aurangzeb both are what? Human beings. So I am comparing two human beings and their qualities. This comparison is known as what? Similar. If I compare one human being with another human being, if I compare one animal with another animal, that is called the similar category of comparison, right? If I talk about preposition, तो preposition का यूज भी आप सीख लीजिए कि जब भी आप compare verb यूज करेंगे किसी भी सेंटेंस में, सिमिलर केस के कॉन्टेक्स्ट में यू हैव टू यूज विथ प्रीपोजिशन. क्या यूज होगा? विथ प्रीपोजिशन यूज होगा, राइट? इन केस ऑफ डिसिमिलर कंपैरिजन you will use to. How? I will tell you. Suppose if I say the sentence like this, beautiful child was compared to a flower. Now here I am
taking the dissimilar comparisons. How it is dissimilar? Because I am comparing child with flower, which is not similar. औरंगजेब और अकबर सिमिलर थे, बट चाइल्ड और फ्लावर सिमिलर नहीं है. चाइल्ड इज ह्यूमन बीइंग, फ्लावर इज नॉट ह्यूमन बीइंग. आई एम टेकिंग द डिसिमिलर कंपेरिजन. इसको क्या बोलते हैं? डिसिमिलर कंपेरिजन. एंड इन दिस कंटेक्स्ट वी टेक व्हाट? द प्रीपोजिशन टू. जैसे मैंने बोला अ ब्यूटीफुल चाइल्ड वॉज कंपेयर टू अ फ्लावर. अब चाइल्ड भी क्या होते हैं? बहुत सॉफ्ट होते हैं, लाइक फ्लावर. तो इसलिए मैंने चाइल्ड को क्या कंपेयर किया? फ्लावर से, राइट? ठीक है. एंड नाउ हियर आई एम कंपेयरिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकबर एंड औरंगजेब, राइट? सो इन केस ऑफ डिसिमिलर कंपेरिजन, इन टर्म्स ऑफ प्रीपोजिशन यूसेज, याद रखना डिसिमिलर कंपेरिजन में क्या यूज होगा? टू. एंड सिमिलर कंपेरिजन में क्या यूज होगा? विथ. क्लियर? नाउ इन टर्म्स ऑफ this base or literary devices, most of the cases may you will get what? The dissimilar comparison. Dissimilar comparison. ठीक है. अब dissimilar comparison हम करते ही क्यों हैं, ये ध्यान से समझो. जैसे मैंने चाइल्ड को फ्लावर से कंपेयर ही क्यों किया? मैं किसी दूसरे चाइल्ड से कर देता. बट सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड. इफ आई एम कंपेयरिंग टू डिसिमिलर थिंग्स, तो मुझे कुछ सिमिलर दिखा होगा तभी ना, राइट? टू कंपेयर सम सिमिलर ट्रेड्स. चाइल्ड के और फ्लावर के बीच एक सिमिलैरिटी मुझे दिखी, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू कंपेयर द डिसिमिलर थिंग्स आल्सो, राइट? चाइल्ड एंड फ्लावर बोथ आर सॉफ्ट इन नेचर, सो इन दैट कंटेक्स्ट, इन दैट केस ऑफ सिमिलैरिटी, आई एम कंपेयरिंग चाइल्ड विथ अ फ्लावर, राइट? नाउ सो द फर्स्ट बेस इज व्हाट? काइंडली नोट डाउन, नोट भी करते रहिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कंपैरिजन, पहला बेस क्या है? कंपैरिजन. तो अपनी कॉपी में आप फर्स्ट कंपैरिजन नोट कर लीजिए. बेस्ड फर्स्ट बेसिस कंपैरिजन. अब इसके अंदर जो लिटरेरी डिवाइसेस आएंगी वो हम पढ़ते जाएंगे. नंबर वन इज सिमिली. नंबर वन इज सिमिली, राइट? सिमिली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स. सी दिस, टू अनलाइक थिंग्स मीन्स व्हाट? टू डिसिमिलर थिंग्स. टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज. लाइक और एज, कॉमन पैटर्न्स इन सिमिलीज: वर्ब प्लस लाइक, अ प्लस नाउन, as plus adjective plus as noun. These are the typical structures of sentences to show simile. But इसका बहुत ध्यान मत रखना, क्योंकि आप अगर simile को आइडेंटिफाई कर रहे हो तो इसके मेन क्रक्स को आइडेंटिफाई करो. मेन क्रक्स इज व्हाट? कंपेयरिंग टू डिसिमिलर थिंग्स टू शो सम सिमिलर ट्रेट्स. ये कहीं पर लिख लो चाहो तो. When we compare two dissimilar traits, or you can say when we compare two dissimilar things to compare some similar traits, or you can say to show some similar traits with the help of the words like or as, then that would be the case of simile, right? Now see this example: as slippery as Neil. as दिख रहा है इसमें. slippery, किसी चीज को आप कंपेयर कर रहे हैं slippery से, and eel is a variety of fish जो कि बहुत slippery होती है. ठीक है. मान लो मैंने कहा he eats like a pig, तो I am comparing the eating pattern of one person with one animal, right? ठीक है. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिली. आप सिमिली में हमेशा एज या लाइक देखोगे, एंड यू विल सी टू डिसिमिलर थिंग्स, नॉट सिमिलर, टू डिसिमिलर थिंग्स, राइट? सपोज इफ आई से ही वॉज फाइटिंग लाइक अ लायन इन द वॉर. ही वॉज फाइटिंग लाइक अ लायन इन द वॉर. नाउ व्हाट? लेट्स सी. इफ आई शो यू, let's see the sentence. Suppose if I say he was fighting like a lion in the war, right? In the war, he was fighting like a lion in the war. Now I am comparing he, that is human being, with an animal which is lion. अगेन ये दोनों क्या है? These two are what? These two are dissimilar. Dissimilar कंपेरिजन हो रहा है. बट मैं क्यों उस पर्सन का कंपेरिजन लायन से कर रहा हूं? बिकॉज आई हैव सीन सम सॉर्ट ऑफ सिमिलरिटी. लायन और उस पर्सन में मुझे एक चीज दिखी, दैट इज कॉल्ड ब्रेविटी. ठीक है, ब्रेवनेस. ये मुझे दिखा जो कि सिमिलर दिखा, कि वो लायन के बराबर ही ब्रेव दिख रहा था, राइट? सो आई स्टार्टेड कंपेयरिंग देम. ठीक है, तो इसमें लाइक वर्ड भी देख लेना कि लाइक लिखा हुआ है कि नहीं. देन यू कैन इजिली आइडेंटिफाई सिमिली, राइट? नाउ द नेक्स्ट थिंग, द नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस अंडर द सेम बेस. अभी बेस चेंज मत करना जब तक मैंने कहूँ. फर्स्ट कंपैरिजन बेस में
पहली लिटरेरी डिवाइस क्या हमने पढ़ी? सिमिली. नाउ सी द अनदर लिटरेरी डिवाइस. सेकेंड इज मेटाफर. मेटाफर इज व्हाट? मेटाफर को एक तरह से लिख लेना, राइट डाउन. इट इज अ direct comparison. It is a direct comparison without using like or as. Like or as will not be there in metaphor, right? मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, लाइक और एज नहीं लगता है, राइट. सपोज मैंने कहा द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट. मैंने डायरेक्टली कैमल को क्या बोल दिया? शिप बोल दिया. लाइक नहीं है, एज भी नहीं है, राइट. लाइफ इज अ ड्रीम. लाइफ को सीधे ड्रीम से जोड़ दिया, राइट. ठीक है, तो दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज मेटाफर, राइट. सी दिस एग्जाम्पल. ही वॉज अ लायन इन द वॉर या इन द फाइट. मैंने ही फॉट लाइक अ लायन लिखा था, वो था सिमिली, लाइक लगा हुआ था. लेकिन मैं सीधे ही वॉज लायन इन द फाइट मैं बोल दूं लड़ाई में वो शेर था, तो देन इज दिट इज द केस ऑफ व्हाट? मेटाफर. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन द लिटरेरी डिवाइसेस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो क्लोज लिटरेरी डिवाइस होगी वो ऑप्शंस में आएंगी. सपोज ए ऑप्शन सिमिली है तो बी मेटाफर मोस्टली होगा, राइट. सो यू मस्ट नो हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द थिंग्स इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन. तो मेटाफर और सिमिली में डिफरेंस क्या है? इफ आई टॉक अबाउट मेटाफर एंड सिमिली, तो व्हाट इज द डिफरेंस? सबसे पहला लाइक और एज इसमें होगा एंड इसमें लाइक और एज नहीं होगा, राइट. ठीक है, इट इज व्हाट? इट इज डायरेक्ट कंपैरिजन, राइट. लाइफ इज अ ड्रीम, राइट. कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट. दिस इज नोन एज मेटाफर एंड सिमिली टेक्स व्हाट? टू डिसिमिलर थिंग्स with the help of like or as, right. Now see the next thing, personification. बेस सेम है, अभी कंपैरिजन का ही बेस चल रहा है. पहला हमने पढ़ा सिमिली, देन दैट इज मेटाफर एंड थर्ड वन इज personification. Personification comes under the base of comparison. Personification means what? In personification, inanimate objects and abstract notions are spoken of as having life and intelligence, right. Means if I talk about in short or in case say in simple words में कहना चाहो तो what is the definition of personification? Try to understand. Personification means what? Means when non-humans, इसको नोट कर लेना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें की फैक्टर्स, की एलिमेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, राइट. व्हेन नॉन ह्यूमंस आर रिप्रेजेंटेड एज ह्यूमंस. व्हेन नॉन ह्यूमंस आर रिप्रेजेंटेड एज ह्यूमंस, नॉन ह्यूमंस आर रिप्रेजेंटेड एज ह्यूमन मीन्स इफ यू सी एनी क्रिएचर विद द ट्रेट्स ऑफ ह्यूमन ट्रेट्स से उसको दिखाया गया है, तो वो सारा किस में आएगा? पर्सोनिफिकेशन में आएगा. Let's see the example. Laughter is holding her both sides. Now, laughter is what? Laughter is not a person, but I am representing it, laughter, as a human being. How we know that it is represented or shown in the form of human traits? See this, holding. Holding is the work of humans. Hold करते हैं humans. ठीक है, तो लॉफ्टर इज होल्डिंग हर बोथ साइड्स. तो होल्ड करना किसका काम है? ह्यूमंस का है. तो मैं लॉफ्टर को ह्यूमन के ट्रेट से जोड़ रहा हूं. इट इज द केस ऑफ पर्सोनिफिकेशन. द फ्लावर्स नॉडेड. नॉडेड मीन्स झुकना. झुकता कौन है? ह्यूमंस. ठीक है, फ्लावर्स के लिए बोल रहा हूं, तो दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. द स्नोफ्लेक्स डांस. स्नोफ्लेक्स डांस. डांसिंग इज द एक्शन डन बाय ह्यूमंस, नॉट फ्लावर्स और स्नो फ्लेक्स, राइट. तो अगेन आई एम कंपेयरिंग और यू कैन से आई एम रिप्रेजेंटिंग नॉन ह्यूमंस as human. Next is the thunder grumbled. The thunder grumbled. Grumbling is an action of human. The fog crept in. Fog crept. Fog is not human. Again, I am treating or representing it with the human traits. Crept. The wind howled. Right? The wind. Again, non-living thing. Right? So, in terms of this personification, when non-humans are represented with human traits, it is the case of personification. Now, अब आपने स्कूल डेज में personification पढ़ा होगा.
But now at this level, at CUET level, or you can say any competitive level, you have to study some more literary devices, right, जो कि आ सकती हैं. तो मैंने कहा ना, क्लोज लिटरेरी डिवाइस पढ़ना बहुत ज़रूरी है. उनमें के बीच कन्फ्यूज़न भी हो सकता है. तो उस कन्फ्यूज़न के लिए आई एम गोइंग टू टेल यू द डिफरेंसेस, राइट. तो पहला आपने अंडर द सेम बेस कंपैरिजन में पर्सोनिफिकेशन पढ़ा. पर्सोनिफिकेशन के भी 2 सब पार्ट्स हैं, राइट. सपोज मैंने बोला पर्सोनिफिकेशन इज द प्राइमरी हेड, राइट. पर्सोनिफिकेशन इज द प्राइमरी हेड, जिसमें हम क्या करते हैं, ह्यूमन ट्रेट्स से नॉन ह्यूमंस को शो करते हैं. नाउ इसके 2 सब हेड क्या हैं. नंबर ए इज नोन एज पैथेटिक फैलेसी एंड नंबर बी इज एपस्ट्रफी. एपस्ट्रफी, ये दोनों पर्सोनिफिकेशन के ही सब पार्ट्स हैं, राइट. पैथेटिक फैलेसी एंड एपस्ट्रफी. पैथेटिक फैलेसी इज व्हाट, व्हेन वी शो human emotions, when we show human emotions through non-humans emotions. And epistrophe is what, when we try to communicate with non-living things. Suppose if I say, "Oh sun, oh moon, please shine as bright as her smile," so I am trying to address or communicate with moon, star, sun, other creatures apart from humans, right. So अगर मैं एक डिफरेंस की बात करूँ तो एक ब्रॉडली अपने माइंड में ये चीज़ें रखना और कॉपी में नोट भी करते चलो. पर्सोनिफिकेशन, आप अगर ये ऑप्शंस भी दिए हुए हैं तो पर्सोनिफिकेशन को आइडेंटिफाई करने का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए. अगर ह्यूमन एक्शन शो हो रहा है, एक्शन जैसे नॉडेड क्या है, एक्शन है. डांस्ड क्या है, एक्शन है. तो दिस इज व्हाट, दिस इज पर्सोनिफिकेशन. इमोशंस शो करना है, इमोशंस, तो दैट इज द केस ऑफ पैथेटिक फैलेसी. सपोज मैंने कहा द एंग्री सी, एंगर इज व्हाट, इट इज अ काइंड ऑफ इमोशन. सी को मैं एंग्री बोल रहा हूं तो पैथेटिक फैलेसी हो गया. एपस्ट्रफी इज व्हाट, मैंने कहा ओ मून प्लीज शाइन एज ब्राइट एज हर स्माइल. No, I am trying to communicate with moon, which is not living thing, right? So जब communication करोगे तो apostrophe है. जब emotion show करोगे, angry sea, the clouds are crying, तो वो क्या है, pathetic fallacy. And when you are showing action of humans with non-humans, तो personification है, right? Note this. Now, let's see the 2 subparts of personification. मैं आपको show भी कर देता हूँ. Apostrophe में है, an apostrophe is a direct address to the dead, to the absent, or to a personified object or idea. This figure is a special form of personification. See, oh holy night, the stars are brightly shining. Now I am addressing or communicating with night, so that is the case of what, apostrophe. Now Milton, you should not be living at this hour. Friend, roll on, death, right. So these are what, these are the signs of apostrophe. Apostrophe को भी पहचानने का क्लू क्या है कि you will get in most of the cases exclamatory marks, right, but not in all cases. कभी कभी आपको अगर क्वेश्चन स्टैंडर्ड करने की कोशिश करेगा तो एक्सक्लामेशन हटा देगा, बट इट डजंट मैटर. ओ मून, ओ सन तब भी बोलेगा, राइट. नाउ apostrophe. Now see the next one. Next one is pathetic fallacy. The pathetic fallacy is a figure of speech in which the natural world or some part of it is treated as though it had human emotions, right. So if you focus on the word emotions here, that would be better. Emotions. The phrase weeping willow, again emotion is an example of pathetic fallacy, right. So in terms of emotions we use pathetic fallacy, in terms of communication we use apostrophe, in terms of showing action we use personification, right. Now तो फर्स्ट बेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा, बेस ऑफ कंपैरिजन, मोस्टली डिसिमिलर ही हो रहा है. तो फर्स्ट बेस में हमने फर्स्ट एलिमेंट पढ़ा, दैट इज सिमिली. सेकंड वाज मेटाफर, थर्ड वाज पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन के भी 2 पार्ट्स थे, एपस्ट्रफी एंड पैथेटिक फैलेसी. नाउ difference between apostrophe and personification.
सी दिस, मैं आपको वैसे बता भी चुका हूँ बट यू कैन रीड दिस. मेन थिंग मैंने आपको बता दिया है. सपोज मैंने सी द एग्जाम्पल, मैंने कहा डियरेस्ट मून प्लीज शाइन एज ब्राइट एज हर स्माइल टुनाइट सो व्हेन आई लुक एट यू आई विल फील इंस्पायर्ड. नाउ अब कई स्टूडेंट होते हैं कि वो सीधे सीधे पिक कर लेंगे कि सर एज लिखा है तो सिमिली क्यों नहीं. नो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस और ट्राई टू अंडरस्टैंड द एक्सप्रेशन. तो पहले ही मैंने अगर अपनी शुरुआत सेंटेंस की डियरेस्ट कर दी, ओ सन, ओ मून, इस तरह से कर दी, तो डोमिनेंट पोर्शन इज व्हाट? द कम्युनिकेशन, द एड्रेसिंग पार्ट, राइट? देन इट वुड बी व्हाट? इट वुड बी apostrophe, right? I am communicating, dearest moon, right? Now second one, can you guess? The moon smiled at me last night. The moon smiled at me. Smile is again a form of emotion, तो इसका क्या होगा? That is pathetic fallacy. Pathetic fallacy. Clear? Now I am going to discuss the second base. पहला base हम लोगों ने पढ़ लिया है. Second base is the figure of speech based on association, right? Now what is association? Let's see. Association is if I associate one thing to another, तो मैं उससे उसको जोड़ता हूँ, जोड़ने की कोशिश करता हूँ, right? So in that case the first literary device is metonymy, right? और प्लीज़ मेरे लेक्चर्स करते वक्त हैव सम काइंड ऑफ नोट्स विथ यू, सम नोटबुक्स, क्योंकि मैं जो शॉर्ट फॉर्म्स बोलता हूँ उसको लिखना बहुत ज़रूरी है, राइट? बिकॉज वी ऑल मीन्स वी डू नॉट लर्न द डेफिनेशंस बट वी कैन पिक द की पॉइंट्स, राइट? नो, metonymy is a figure of speech in which a thing or concept is not called by its own name but by the name of something intimately associated with that thing or concept, right? जैसे इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, एक और पढ़ देता हूँ. मेटोनमी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द नेम ऑफ एन एट्रीब्यूट और एडजेंक्ट इज सब्सटीट्यूटेड फॉर दैट ऑफ द थिंग मेंट. एट्रीब्यूट द क्रिएटर ऑफ द वर्क ऑफ आर्ट, एडजेंक्ट इज समथिंग दैट इज कनेक्टेड विद समथिंग लार्जर. नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस वन, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा या शॉर्ट में हमें माइंड में क्या रखना है? तो इन दैट कंटेक्स्ट यू शुड नो दैट इफ वन थिंग इज सब्सटीट्यूटेड, राइट डाउन, if one thing is substituted with another, substituted is the important word, right? Substituted, जैसे हम मार्केट में जाते हैं, राइट? कई लोग जो है रिटेलर से कहते हैं सर एरियल दे दीजिए. अब एरियल मीन्स व्हाट? अगर मैं एरियल के कॉन्टेक्स्ट को समझूं तो एरियल आपके शेक्सपियर की लैंग्वेज में तो एरियल वाज स्पिरिट. तो मैं आत्मा मांग रहा हूँ दुकान पे जाके? नो, एरियल इज अ डिटर्जेंट पाउडर, बट वी डू नॉट से डिटर्जेंट पाउडर. कभी किसी ने कहा कि डिटर्जेंट पाउडर दे दीजिए, लोग बोलते हैं एरियल दे दीजिए, रिन दे दीजिए, राइट? सर्फ दे दीजिए. व्हाट इज दैट? दैट इज द नेम ऑफ ब्रांड. रिटेलर भी समझ जाता है कि ये क्या चाह रहे हैं, ये आपका डिटर्जेंट पाउडर ही मांग रहे हैं, लेकिन विथ अ काइंड ऑफ सब्सटीट्यूशन. तो किसी चीज़ को, किसी एक चीज़ को दूसरे नेम से मैं सब्सटीट्यूट करूँ तो दैट इज नॉन एज व्हाट? Metonymy. Let's see the examples. I enjoy reading Shakespeare, right? I enjoy reading Shakespeare. अब ध्यान से सोचो, मैंने वर्ड यूज़ किया सेंटेंस में शेक्सपियर, ठीक है? ये ब्रैकेट में लिखा है मैंने, ये सेंटेंस में नहीं है, राइट? I enjoy reading Shakespeare. तो शेक्सपियर इज द नेम ऑफ पर्सन, तो मैं उसको रीड कैसे कर सकता हूँ? पर्सन को कैसे रीड कर सकता हूँ? लेकिन इसका नोशन क्या जा रहा है कि आई लाइक टू रीड हिज plays, his writings, his drama, right? But मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ? शेक्सपियर. तो शेक्सपियर सब्स्टिट्यूट कर रहा है किसको? उसके प्लेस को. शेक्सपियर वॉज द ग्रेट ड्रामेटिस्ट, राइट? नाउ अ मिनिस्टर ऑफ द क्राउन, क्राउन किसको सिंबलाइज कर रहा है? किंग और क्वीन को. तो मैंने ये किंग और क्वीन नहीं सेंटेंस में लिखा, मैंने क्राउन से काम चला लिया. तो दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज मेटोनिमी. दैट इज नोन एज मेटोनिमी. एक चीज को दूसरे से associate कर देना, right? Now, if I talk about another literary device in base association is synecdoche. Synecdoche, kindly note this. अभी सेम बेस है, एसोसिएशन में ही पहला मेटोनमी है एंड द सेकेंड वन इज
synecdoche. Synecdoche is what? Synecdoche occurs when a part is represented by the whole, or conversely the whole is represented by the part. Means मैंने कहा था ना आपसे कि क्लोज ऑप्शंस आएंगे, इसलिए मैंने बेस बना के पढ़ाया. आप हैफाजार वे में नहीं पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग लिटरेरी डिवाइसेस इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. ठीक है, तो मैंने बोला कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटोनिमी एंड सिनिकडकी. मेटोनिमी एंड सिनिकडकी. तो मेटोनिमी और सिनिकडकी में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? लेट्स सी. मेटोनिमी और सिनिकडकी में डिफरेंस क्या है? मेटोनिमी में भी सब्स्टिट्यूट कर रहे थे और सिनिकडकी में भी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. सी दिस व्हील्स. मैंने बोला, सपोज मैंने बोला आई बॉट अ पेयर ऑफ व्हील्स. आई बॉट अ पेयर ऑफ व्हील्स. नाउ पेयर ऑफ व्हील्स, मैंने बोला पेयर ऑफ व्हील्स मीन्स व्हाट? मैंने वर्ड यूज किया व्हील्स, विच इज डिनोटिंग द मेजर या द ब्रॉड पार्ट, द होल पार्ट, दैट इज नोन एज कार. जैसे मान लो मैंने बोला सपोज दिस इज कार. ठीक है, माई राइटिंग इज नॉट गुड, राइट? सो काइंडली अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट? दिस इज कार. ठीक है, आई एम टेकिंग दिस वन, दिस इज व्हाट? दिस इज कार. This is what? This is wheel, right? So I am showing in my sentence the wheel part, but it denotes the larger part, that is car. तो ये वर्क जो हम करते हैं कि किसी स्मॉल पोर्शन को बोल के मैं लार्ज थिंग को डिनोट करता हूँ, दैट इज नोन एज सिनिकडकी. वो किसको बोलते हैं? सिनिकडकी को, राइट? नो, द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन मेटोनिमी एंड सिनिकडकी इज, ध्यान से सुनना. मैंने यहाँ पर मेटोनिमी में आपको एग्जाम्पल शो किया था कि आई लाइक टू रीड शेक्सपियर, राइट? तो शेक्सपियर और उसके प्लेज अलग अलग हो गए ना. शेक्सपियर पर्सन का नेम है और प्लेज उसकी बुक हो गई, राइट? थिंग्स आर व्हाट? ये नोट कर लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. थिंग्स आर डिफरेंट इन मेटोनिमी. थिंग्स आर डिफरेंट इन मेटोनिमी. मेटोनिमी में थिंग्स क्या होती है? डिफरेंट होती हैं, राइट? ठीक है. एंड इन सिनिकडकी, सिनिकडकी में मैंने बोला आई बॉट अ पेयर ऑफ व्हील्स. तो व्हील्स का मतलब क्या है? व्हील्स उसी कार की है ना. तो थिंग्स आर व्हाट? थिंग्स आर सेम. उसी कार के पार्ट की बात कर रहा हूं, तो थिंग्स आर सेम. थिंग्स आर सेम. सपोज मैंने बोला आई हैव हायर्ड अ न्यू हैंड for my help. I have hired a new hand for my help. अब मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं? हैंड. आई एम यूजिंग वर्ड हैंड. ठीक है, वो डिनोट क्या कर रहा है? पूरे पर्सन को. मैं हैंड थोड़ी अलग से लिखूंगा. ठीक है, आई हैव हायर्ड वन पर्सन फॉर माई असिस्टेंस और आई नीड हेल्प, राइट? सो अब यहां पर भी अगर तुम फोकस करो, सपोज दिस इज अ पर्सन. ठीक है, दिस इज अ पर्सन. ठीक है, आई एम डिनोटिंग हिज हैंड ओनली. तो ये हैंड ही है और इस पर्सन का ही है. तो थिंग्स इसमें चेंज थोड़ी हुई. मैंने कार बोला तो कार उस व्हील उस कार की ही थी. तो थिंग्स आर सेम इन केस ऑफ सिनिकडकी एंड थिंग्स आर डिफरेंट इन मेटोनिमी. दिस इज द बेसिक डिफरेंस, राइट? अब आप देख सकते हो एग्जाम्पल्स में. आई हैव सो मेनी प्लास्टिक कार्ड्स. प्लास्टिक कार्ड्स मीन्स व्हाट? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कोक, हायर्ड हैंड्स, पुलिस. तो दीज आर व्हाट? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिनिकडकी. ठीक है, तो आई होप कि आपको डिफरेंस समझ में आएगा, बिकॉज टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? नाउ द नेक्स्ट वन इज डिफरेंस बिटवीन मेटाफर, मेटोनिमी एंड सिनिकडकी. लेट्स रीड दिस. कंपैरिजन बिटवीन टू सिमिलर थिंग्स, दोज आर अदरवाइज अनरिलेटेड, मीन्स नॉट सेम. मेटोनिमी, रीनेमिंग थ्रू एसोसिएशन. Synecdoche, a kind of metonymy in which one piece represented the whole. ठीक है. Now, if I say the next base, अभी हम लोगों ने 2 bases पढ़े. एक base था figure of speech based on comparison. उसमें हम लोगों ने पढ़ा simile, metaphor and personification. Personification is having 2 parts, 2 subparts, apostrophe and pathetic fallacy. अब second part में हम लोगों ने पढ़ा association. Association में we read मेटोनिमी एंड सिनिकडकी, राइट? मेटोनिमी में थिंग्स आर डिफरेंट, सिनिकडकी में थिंग्स आर सेम, राइट? नाउ द थर्ड बेस
चेंज योर बेस. बेस आप लोग अपना कॉपी में नोट कर लो. दूसरा, नाउ द बेस इज व्हाट? साउंड. फिगर ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन व्हाट? Sound effects. Based on sound effects. Sound means what? When you start telling any word, speaking any word, the first sound which comes from your mouth, उस sound की बात कर रहे हैं, right? ठीक है. तो in this space, under this base, पहली literary device is what? Onomatopoeia. Onomatopoeia is what? इसको short में लिख सकते हो. Names of sound. Names of sound. Names of sound produced by any creature, और you don't have to worry कि sound किससे क्या निकलता है. Suppose if I talk about buzz, तो buzz is created by bees. Splash, water में कुछ भी डालो, splash, whoosh, बहुत ही हरी कर रहे हैं, जल्दीबाजी कर रहे हैं तो whoosh. Click, oink is done by pig. तो ये सारे names of sound है. अब आप ये कहो कि सर मुझे किसी का sound नहीं पता है. अब जैसे कई लोग कहते हैं सर कि सर स्प्लैश नाम क्यों दिया गया? बिकॉज हम पानी में कुछ डालें तो छपाक की आवाज़ आती है, और यहाँ पर तो स्प्लैश लिखा है. तो हिंदी और इंग्लिश में नेम्स तो डिफरेंट होंगे ना, राइट? ठीक है. तो डोंट यू वरी अबाउट नेम्स. ठीक है. नेम्स मेंशन होंगे सेंटेंस पे, पोएट्री में या स्टैंजा में. ठीक है. नेम्स मेंशन होंगे, बस ये देखना कि वो साउंड का नेम दिया हो. ठीक है. तो दैट वुड बी व्हाट? ओनोमेटोपोएia. इट इज़ द टर्म ऑफ अ वर्ड दैट साउंड्स लाइक व्हाट इज डिस्क्राइबिंग, राइट? So it is very easy to identify onomatopoeia in the sentence. Name sounds, मतलब sounds के जो name है, that is onomatopoeia. The next one is alliteration under the same base sound. Alliteration means what? Alliteration is the repetition of the beginning sounds of neighboring words. Neighboring words means what? आप neighboring words नहीं भी फोकस करो तो ये रखना. Wait a minute. See this. Always remember this thing. ये नोट कर लो या हाईलाइट कर लेना. बिगिनिंग साउंड्स. बिगिनिंग साउंड्स मीन्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस जो साउंड्स रिपीट हो रहे हैं. कौन से रिपीटेशन? रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स. रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स. कॉन्सोनेंट्स आर व्हाट? कॉन्सोनेंट साउंड्स आर अपार्ट फ्रॉम द वोवेल साउंड. Vowel sounds are what? Vowel sounds is created by A, E, I, O, U. ठीक है. तो उससे डिफरेंट जो साउंड्स होंगे दैट इज कॉन्सोनेंट्स. ठीक है. तो कॉन्सोनेंट साउंड से जो भी स्टार्टिंग होगी दैट विल बी एलिटरेशन. ध्यान से देखना, स्टार्टिंग जरूर लिखना, बिगिनिंग, क्योंकि इससे क्लोज लिटरेरी डिवाइसेस हैं, उससे आपको डिफरेंस समझने में आसानी रहेगी. इसलिए बिगिनिंग जरूर लिख लेना अपने पॉइंट में, राइट? सपोज दिस वन. देखो कई स्टूडेंट्स हैं जो अल्फ़ाबेट्स पिक करते हैं. अल्फ़ाबेट्स मीन्स, अब जैसे मान लो उन्होंने देखा कि सर इसमें एस 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 रिपीट हो रहा है. शी सेल्स, सी शेल्स, तो एस इज रिपीटेड, तो सर ये होगा एलिटरेशन. ठीक है. वॉल्टर वंडर्ड वेयर विनी वॉज, डब्ल्यू इज रिपीटेड, इट इज द केस ऑफ एलिटरेशन. ब्लू बेबी बॉनेट्स बॉब्ड, दिस इज वॉट? दिस इज रिपीटेड. बी इज रिपीटेड, तो सर ये हो जाएगा एलिटरेशन. ठीक है. निक नीडेड न्यू नोटबुक्स, एन इज रिपीटेड. फ्रेड फ्राइड फ्रॉग्स, एफ इज रिपीटेड. तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टेक दिस एज द की पॉइंट और की एलिमेंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिटरेशन. वो लेटर्स पिक करते हैं कि अपार्ट फ्रॉम ए ई आई ओ यू अगर कोई भी अल्फ़ाबेट बिगिन कर रहा है और रिपीट हो रहा है तो दैट वुड बी द केस ऑफ एलिटरेशन. बट नॉट ऑलवेज. जैसे ये एग्जांपल देखो जो मैंने बोला है. मैंने बोला नॉट नॉटी. नॉट नॉटी, देखो एन यहाँ पर है, यहाँ पर के एन है, रिपीट तो नहीं हुआ बट द साउंड इज रिपीटेड. नो 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 इज रिपीटेड, दैट इज वॉट? एलिटरेटिव. यहाँ पर देखो तुम्हारे अल्फ़ाबेट्स तो सेम है बट दिस इज नॉट एलिटरेटिव. हाउ? सिगरेट चेज, द साउंड इज वॉट? सी चे, सी चे, नॉट सेम साउंड. दिस इज नॉट एलिटरेटिव. ठीक है. तो आप ये करते तो हो, इससे मोस्ट ऑफ द केसेस में यू विल गेट सक्सेस. बट ये याद रखना साउंड्स की बात हो रही है, राइट? ठीक है. तो इफ बिगिनिंग कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटेड देन इट इज द केस ऑफ एलिटरेशन, राइट? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज assonance. Assonance means what?
Assonance is another literary device under the same base sound. Assonance. Assonance is the repetition of vowel sounds, not just letters in words that are close together. The sounds don't have to be at the beginning of the word. अब assonance का यही एलिमेंट समझना कि assonance क्या है कि if I say assonance is what kind of thing literary device. Alliteration मैंने क्या बोला था? Beginning, if beginning consonant sounds are repeated, then that would be the case of alliteration. But यहाँ पर क्या है assonance में beginning is not the compulsion. लिखा है ना, not necessarily at the beginning. Anywhere means if vowel sounds वो consonant था, if vowel sounds are repeated not at the beginning, not necessarily at the beginning, then it would be the case of assonance. Let's see. Scene, beat, which sound is repeated? E sound is repeated, right? History, mystery, E sound again is repeated. That is the case of assonance, right? Now, the next one is pun. What is pun? Pun is another kind of literary devices under the same base sound. Pun. इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि when we use homonyms or homophones, right, means सेम साउंड तो होंगे वर्ड्स के बट मीनिंग डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है. तो व्हेन वी हैव मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ द सेम वर्ड और द साउंड, सी दिस, a pun is a figure of speech that plays with words that have multiple meanings or that plays with words that sound similar but mean different things. Means if we are using double meaning words to create some kind of humor, ये याद रखना, pun से हम हमेशा क्या create करते हैं? We always try to create some kind of humor, ठीक है, humor with double meaning words, ठीक है, with double meaning words we always try to create some kind of humors with double meaning words. Now if I talk about the examples, जैसे मान लो मैंने बोला कि I am a mender of bad souls, right? No, wait a minute. I am a mender of bad souls. No, यहाँ पर which word is creating pun? Let's understand. Souls have two meanings. Souls have two meanings. One soul is of shoes, shoes की जो soul होती है, and other is what? Soul is spirit, spirit. उसकी meaning spelling different होती है, SOUL होती है, but the thing is एक वर्ड से टू मीनिंग्स लिख रही हैं या निकल रही हैं. जैसे मैंने कहा आई एम मेंडर ऑफ बैड सोल्स. बैड सोल्स एक तो हो गया, अगर जूते खराब हैं, उसकी सोल्स खराब है, तो उसको भी मैं मेंड कर सकता हूँ, ठीक कर सकता हूँ. और अगर कोई बैड सोल है, मीन्स इफ एनी वन इज बैड, इफ एनी बैड पर्सन इज देयर, तो मैं उसको भी सुधार सकता हूँ, राइट, ठीक है. तो सोल इज क्रिएटिंग पन, ठीक. नाउ अगर मैं तुमसे ये कहूँ अनदर एग्जाम्पल, तो अनदर एग्जाम्पल इज दिस. सपोज इफ आई राइट दैट if you are bad then I am your dad. If you are bad then I am your dad. ये सुना भी होगा आपने, ठीक है. Dad is creating pun. एक dad क्या हो गया? One dad is giving you the meaning of the biological relationship that is known as father, right? The second meaning is if you are bad then I am your boss. तो एक ही वर्ड डैड से टू मीनिंग्स निकल रही हैं, दैट इज नोन एज पन, राइट. डबल मीनिंग वर्ड्स, देखो यहाँ पर भी एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि अ हैप्पी लाइफ डिपेंड्स ऑन अ लिवर. नो, लिवर इज क्रिएटिंग पन. एक लिवर क्या हो गया? अ पर्सन हु लिव्स. द सेकेंड लिवर इज बॉडी ऑर्गन. क्लियर? सो दिस इज व्हाट पन. नाउ let's see the another base figure of speech literary device based on contrast or opposite ideas. Contrast or opposite ideas. Now what is this? Let's see. Contrast or opposite ideas
कंट्रास्ट मीन्स अपोजिट, तो अपोजिशन या अपोजिट आइडियाज के बेस पर कौन सी लिटरेरी डिवाइस होंगी? तो नंबर 1 इज एंटीथीसिस. एंटीथीसिस इज व्हाट? सी, when two words, yeah, when we are using two contradictory words in the same sentence but not neighboring, तो यहां पर मैं जो लिख रहा हूं वो आप कहीं लिख लीजिएगा. यूजिंग टू contradictory words, using two contradictory words but not side by side, एकदम एडजेसेंट यूज नहीं करेंगे. सेंटेंस में होंगे तो वो सेम सेंटेंस में, बट उनके बीच गैप होगा. अगर बीच में एंड भी आ जा रहा है तो हम उसको क्या मानेंगे? एंटीथेसिस. सी द एग्जाम्पल, लव इज एन आइडियल थिंग, मैरिज इज अ रियल थिंग. विच वर्ड इज अपोजिट? एक स्टूडेंट ने कह दिया था लव एंड मैरिज, सो दैट इज नॉट अपोजिट. सी, अगर मैं तुमसे बोलूँ आइडियल एंड रियल, दीज टू वर्ड्स आर डिफरेंट, तो बीच में देखो और भी वर्ड्स हैं, तो दिस इज द क्लियर कट केस ऑफ व्हाट? एंटीथेसिस. नाउ सी दिस, better to reign in hell than to serve in heaven, right? So hell and heaven are two opposite words. इसमें भी देखो बीच में गैप है, कई वर्ड्स और आए हैं. Patience is bitter but it has a sweet fruit. Bitter and sweet are two opposite words. बीच में वर्ड्स हैं. You are easy on eyes, hard on heart. तो easy and hard is different, और you can say opposite. तो ये दोनों देखिए कंट्रास्टिंग वर्ड्स तो हम यूज कर रहे हैं, बट बीच में और भी कई वर्ड्स हैं. तो साइड बाय साइड या नेबरिंग ना हो अपोजिट वर्ड्स, तो वो किसका केस होता है? दैट इज द केस ऑफ एंटीथेसिस लिटरेरी डिवाइस, राइट? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, ऑक्सीमोरॉन. सेम बेस है, कंट्रास्ट और अपोजिट आइडियाज. ऑक्सीमोरॉन इज व्हाट काइंड ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइस इज? सपोज इफ आई टॉक अबाउट ऑक्सीमोरॉन, तो ऑक्सीमोरॉन इज कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स अपीयर साइड बाय साइड. वो नेबरिंग नहीं थे, यहां पर नेबरिंग ही होगा, मतलब अपोजिट वर्ड्स एकदम अगल बगल ही यूज करिए, बीच में कुछ भी नहीं आना चाहिए. सपोज सी दिस, शी इज एन ओपन सीक्रेट फॉर मी. ओपन और सीक्रेट एक साथ लिखे हुए हैं, ओपन और सीक्रेट अपोजिट वर्ड्स हैं. ट्रेजिक कॉमेडी, दिस इज अपोजिट वर्ड. हैविंग नथिंग, अपोजिट. वाइज फूल, राइट? तो दिस इज व्हाट? दिस इज अपीयरिंग साइड बाय साइड, नेबरिंग है यहां पर कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स, दैट इज नोन एज ऑक्सीमोरॉन. तो ऑक्सीमोरॉन और आपके एंटीथीसिस में क्या डिफरेंस होगा? ऑक्सीमोरॉन और एंटीथीसिस में क्या डिफरेंस होगा? लेट्स अंडरस्टैंड. एंटीथीसिस विल टेक व्हाट? टू अपोजिट वर्ड्स बट नॉट साइड बाय साइड, ठीक है? और मैंने इसमें क्या किया? टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स अपीयर साइड बाय साइड. ये साइड बाय साइड होंगे, ठीक है, और ये साइड बाय साइड नहीं होंगे, ठीक है? ये साइड बाय साइड नहीं होंगे, ये साइड बाय साइड होंगे, राइट? ठीक है, दोनों ही पैटर्न में क्या है कि सेम सेंटेंस में कॉन्ट्राडिक्टरी या अपोजिट टर्म्स यूज किए जाएंगे, राइट? नाउ सी द नेक्स्ट वन. ऑक्सीमोरॉन के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? पैराडॉक्स. सेम हेड चल रहा है, कंट्रास्ट और अपोजिट आइडियाज. पैराडॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन आता है इस पर. पैराडॉक्स मीन्स व्हाट? इफ टू कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स आर यूज्ड इन द सेम सेंटेंस व्हिच सीम्स वियर्ड और ऑकवर्ड बट दे आर ट्रू एंड प्रिवेलिंग. दे आर ट्रू एंड प्रिवेलिंग मीन्स व्हाट? वो ट्रू भी होते हैं और प्रिवेल भी करते हैं, राइट? ठीक है, जैसे मैंने बोला योर फ्रेंड्स एनिमी, योर एनिमीज फ्रेंड इज योर एनिमी. I am nobody, truth is honey which is bitter. I must be cruel to be kind to you. Now, if I talk about paradox, तो paradox का मतलब हुआ contradictory terms use कर रहे हो. लेकिन इसमें और बाकी लिटरेरी डिवाइस में डिफरेंस है. पैराडॉक्स के लिए जो मैं की एलिमेंट लिखने जा रहा हूँ उसको नोट करना. दैट विल हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग द पैराडॉक्स. पैराडॉक्स होता है, हिंदी में बोलो तो थोड़ा सत्संग टाइप का होता है. सत्संग मीन्स इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द जेनरिक लैंग्वेज, जेनरिक थिंग्स, लाइफ इज a part of struggle, right? ठीक है, if you want to taste the sweetness of life, you must go through the bitterness of it. तो ये ऐसा किसी एक पर्सन पर तो होगा नहीं, सबके लिए बोला जाता है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल पर फॉलो होता है. तो पैराडॉक्स को लिख लो कि इट इज व्हाट? इट इज मोस्टली जेनरिक एंड
एप्लीकेबल टू मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, एप्लीकेबल टू मेजॉरिटी, ये मेजॉरिटी पर फॉलो होता है, मेजॉरिटी पर अप्लाई होता है, राइट, इट इज एप्लीकेबल टू मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, राइट, पैराडॉक्स, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला योर एनिमीज फ्रेंड इज योर एनिमी, ये सबके लिए है ना, सबके लिए बोला गया, मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए ये फॉलो ही होगा, ठीक है। आई एम नोबडी, मैं कुछ नहीं हूँ, आई एम नथिंग, ठीक है, सब लोगों के लिए होता है कि भाई ह्यूमंस आर नथिंग, ठीक है। ट्रुथ इज हनी विच इज बिटर, अगेन फॉर द मेजॉरिटी। आई मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड टू यू, जैसे मान लो टीचर्स क्रूअल होते हैं स्टूडेंट्स पर, क्यों? फॉर देयर डेवलपमेंट ओनली, राइट। तो ऐसा किसी एक टीचर और एक स्टूडेंट के साथ नहीं है, मेजॉरिटी के साथ है। तो दैट इज द की इन आइडेंटिफाइंग पैराडॉक्स, ठीक है। बाकी सब क्या होते हैं? सपोज इफ आई टॉक अबाउट द क्लोज लिटरेरी डिवाइस विथ पैराडॉक्स इज आयरनी। आयरनी इज ऑल्सो टेकिंग द कंट्राडिक्टरी टर्म्स इन द सेम सेंटेंस, बट द थिंग इज यहां पर क्या है? दिस इज आयरनी इज व्हाट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आयरनी इज case specific. Case specific means it is not generic, not applicable to majority of the people, or paradox is generic in nature, applicable to majority. Suppose मैंने तुमसे कहा कि suppose मैंने बोला कि a traffic cop was caught for not wearing helmet. एक ट्रैफिक पुलिस का चालान काट दिया गया हेलमेट पहनने के लिए नहीं, तो जो दूसरों का चालान काटता है उसका खुद ही का चालान काट दिया गया। तो दैट इज व्हाट, ऐसा सबके साथ तो होगा नहीं, उसी के साथ हुआ, एक स्पेसिफिक पर्सन पुलिसमैन के साथ, तो वो क्या हो गया? वो आयरनी हो गई। मैंने जिस दिन अम्ब्रेला परचेज किया उस दिन से बारिश होना बंद हो गई, राइट। द डे आई बॉट एन अम्ब्रेला इट स्टॉप्ड रेन, तो क्या हुआ? ऐसा सबके साथ होगा कि जो अम्ब्रेला कर देंगे तो बारिश रुक जाएगी? नो। तो आयरनी इज व्हाट, केस स्पेसिफिक, एंड पैराडॉक्स इज ब्रॉड। क्लियर? नो। Chiasmus is what? Just note it. If first half is reversed in the second half, ये red portion लिख लेना, right? If first half is reversed in the second half, suppose if I say, if first half is reversed in the second half, first half is what? And second half. देखिए रिवर्स होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने ये देखा एग्जाम्पल, in the end the true test is not the speeches a president delivers, it's whether the president delivers on the speeches. तो ये पोर्शन रिपीट हो रहा है या इन्वर्स हो रहा है सेकेंड हाफ में, राइट। यू फॉरगेट व्हाट यू वांट टू रिमेंबर एंड यू रिमेंबर व्हाट यू वांट टू फॉरगेट। आप जो भूलना चाहते हो वो याद रहता है और जो याद रखना चाहते हो वो भूल जाते हो। तो वही चीज़ क्या है? रिपीट हो रही है। तो इफ फर्स्ट हाफ इज रिवर्स्ड इन द सेकेंड हाफ देन दैट वुड बी द केस ऑफ chiasmus, राइट। नाउ epigram. Epigram is what? It is a rhetorical device that is a memorable, brief, interesting and surprising satirical statement. Example, live simply so that live simply so that others may simply live. ये epigram होता है, वो humor क्रिएट करने निकल देता है। बहुत ही smart statements को epigram में consider करते हैं, right? Now, अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सी literary device पढ़ी? Just revise. First base was figure of speech, literary device based on comparison. Second was based on association. Third was based on sounds. Fourth one was based on contrast or opposite ideas, right? ठीक है। The rest of the things I will cover in the next part, right? Thank you so much.